Good morning, my dear student. Today we are going to start your class 11th history and we'll continue this chapter, third order. In this chapter, we have read already the previous all the topics. Today we are going to start the next topic, factors affecting social and economic relation. While member of the first two order saw the social system as stable and unchanging, there were several processes which were transforming the system. Some of these, such as change in the environment, were gradual and almost the imperceptible. Others were more dramatic, like the change in the agriculture technology and land use. This is done where the shaped by and had a effect on the social and economic ties between lord and vassals. Let us example these process one by one. I have already explained this paragraph in my previous video, where I have discussed that situation that has changed, बदलाव हो रहा था. जो परिस्थितियाँ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर दे फेल दैट देयर पोजिशन that is stable but situation has changed. ये बदलाव क्यों आया? Why this type of change happened? Because of the environmental change, because of the fertility growth rate decrease, and because of there are so many other social norms implemented on the society. कई परिवर्तन थे. Sometimes the agriculture growth increase and sometimes it may be, we can say that decreases also, where there is no technology. Day by day their position going to be dull, and it is very interesting to understand you that कि किस तरीके से प्रौद्योगिकियों टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हुई, भूमि का जो उपयोग बढ़ा, इससे लाड़ और फ्यूडल के बीच जो सामाजिक और आर्थिक संबंध थे उसमें परिवर्तन आने शुरू हो गए. ये परिवर्तन कैसे आए, क्यों आए? वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वी विल रीड. फर्स्ट द इन्वायरमेंट. फर्स्ट वी विल फोकस द इन्वायरमेंट टॉपिक. द इन्वायरमेंट फ्रॉम द 5th to the 10th century, most of Europe was covered with vast forest. Thus the land available for the agriculture was limited. Also peasants, dissatisfied with their condition, could flee from oppression and take refuge in the forest. Europe was undergoing on the intensely could climate spell in this period. This led to severe and prolonged winters, a certain growing season for the crops, and including season crops and reduced yield from agriculture. पर्यावरण, क्लाइमेट्स, 5th to 10th century, यूरोप के अधिकांश भाग that was covered from the vast forest. यूरोप के अधिकांश क्षेत्र जंगलों से घिरे हुए थे. Thus the land available before agriculture was limited. इसलिए खेती के लिए जमीन लिमिटेड थी, कम थी. And peasants, dissatisfied with their condition, could flee from oppression and take refuge in the forest. इसके साथ ही अपनी परिस्थितियों से पीजेंट्स असंतुष्ट था और वो ऑपरेशन मतलब अत्याचार से बचने के लिए वहाँ से भागकर जंगलों में छुप जाया करते थे. इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था. क्लाइमेटिक सीजन थी, विंटर सीजन था. इसमें सर्दियाँ प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई थी. विंटर सीजन काफ़ी लंबा खिंच रहा था, बड़ा हो गया था, और जो प्रोडक्शंस थी, क्रॉप प्रोडक्शंस, वो छोटा टाइम होने के कारण कम हो गई थी. इट मीन्स द शॉर्टेज ग्रोइंग सीजन फॉर क्रॉप एंड रिड्यूस्ड yield फ्रॉम एग्रीकल्चर. From the 11th century, the Europe entered warm phases.
11th सेंचुरी तक आते हैं, टिल 11th सेंचुरी देर वर सो मेनी चेंजेस. इट आल्सो चेंज कम इन क्लाइमेट आल्सो. जलवायु पर में भी परिवर्तन हुआ, जलवायु भी बदला 11th सेंचुरी में. और यूरोप इंटर्ड वार्म फेजेस. यूरोप, it is the fruitful for the Europe because in Europe there are the एक बहुत कड़ा ठंड पड़ती है यूरोप में, और जब वहाँ पे जब वार्म फेजेस आए तो ये उनके लिए हेल्पफुल था. एवरेज टेम्परेचर्स इंक्रीज्ड विच हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चर. पीजेंट्स नाउ हैड ए लॉन्गर ग्रोइंग सीजन एंड दिस द सॉइल नाउ लेस सब्जेक्ट टू frost could be more easily plowed. Environmental historians have noted that there was a significant reducing of the forest line in many parts of the Europe. This made expansion of the area under cultivation possible. 11th सेंचुरी तक आते आते यूरोप में गर्माहट का काल शुरू हुआ और तापमान बढ़ने लगा, जिससे एग्रीकल्चर पे अच्छा प्रभाव पड़ा. पीजेंट्स को खेती के लिए लंबी टाइम मिलने लगी, लंबी अवधि मिलने लगी, और फिर मिट्टी पर पाले का असर भी कम होने के कारण खेती करना आसान हो गया. इट मीन्स जब ठंडक कम पड़ती है तो खेती अच्छी होती है. पर्यावरण इतिहासकार इस बात को नोट किए. जो हिस्टोरियंस थे, इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस, दे नोटेड दैट रीजन्स द सरप्लस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन Europe entered in warm phase. That is a significant role. एक महत्वपूर्ण बदलाव था ये. That changed the condition of Europe. पर्यावरण में जो बदलाव हुआ, यूरोप के अनेक भागों में, फॉरेस्ट क्षेत्रों में बहुत सारी कमी हुई, जंगल काटे गए, वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किए गए. इस तरह से सरप्लस प्रोडक्शन के लिए भूमिका तैयार कर ली गई. फार्मिंग लैंड बड़े बड़े कर लिए गए. Land use. Next point, the land use. Initially, agriculture technology was very primitive. The mechanical aid available to the peasants was the wooden plow drawn by the form of oxen. This plow could be best stretch of surface of the earth team of oxen. This plow could at best search the surface of the earth and was unable to fully draw out of the natural productivity of the soil. Agriculture was therefore very labor intensive. Fields had to be dug by hand often once in 4 years. The enormous manual labor was required. Land use. आपने देखा कि शुरुआत में कृषि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बहुत प्राचीन थी, पुरानी थी. पीजेंट्स को मिलने वाली यांत्रिक मतलब टेक्नोलॉजिकल जो हेल्प थी वो केवल एक जोड़ी बैल थी, और बैलों से चलने वाले वुडन प्लाउ, लकड़ी के बने हल थे. और ये हल केवल अपर पोर्शन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ ये स्क्रैच करते थे, ऊपरी पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही ये केवल खुरचते थे. इस तरह से जो फर्टिलिटी थी लैंड की वो प्रॉपर नहीं हो पाती थी. गहरी जुताई न होने के कारण उत्पादन पूरा अच्छा नहीं होता था, और फिर इसीलिए यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरीके से बाहर निकाल पाने में असमर्थ होती थी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट कि अपन वंस इन 4 ईयर एंड इनॉर्मस मैनुअल लेबर वाज रिक्वायर्ड. 4 साल में एक बार हाथों से खेतों की जुताई गहरी की जाती थी, और ये काफ़ी खर्चीले भी थी. साथ ही जो द इनइफेक्टिव मेथड ऑफ द क्रॉप रोटेशन वाज इन यूज. जो फसल चक्र थी वो एक प्रभावहीन थी, एक कारगर तरीके से यूज नहीं की जा रही थी. भूमि 2 भागों में बांट दिया जाता था. लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. One field was planted in autumn with winter wheat, while the other field was left fallow. एक जमीन के हिस्से पे गेहूं बोई जाती थी और अगला हिस्सा छोड़ दिया जाता था, फिर अगले हिस्से को अगले साल बोया जाता था. The race was planted in this piece of fallow
and the next year, while the other half was put to follow with this system. The soil slowly the deteriorated. The famines were not uncommon. Chronic malnutrition's alternative with the disadvantaging famines and life was difficult for the poor. ऐसी कंडीशंस जब फसल चक्र प्रभावहीन थी, दूसरी भूमि को खाली करके अगली फसल बोई जाती थी और अगले वर्ष प्रति भूमि पर राई बोई जाती थी, सरसों बोई जाती थी, जबकि दूसरा आधा भाग खाली रखा था। ये जो व्यवस्था थी, ये जो सिस्टम थी, ये लैंड की फर्टिलिटी पर डिपेंड करती थी और लैंड फर्टिलिटी डे बाई डे कम हो रही थी, घटती जा रही थी। इन कठिनाइयों के बाद भी जो लार्ड थे अपनी आय को एक फिक्स रेट पे ही कलेक्ट करते थे, अधिकतम से अधिकतम प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते थे। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, उत्पादकता नहीं बढ़ रही थी, फिर भी लॉर्ड अधिक से अधिक आय प्राप्त करना चाहते थे और इसीलिए कृषकों को मैनर की जागीर, मैनरियल स्टेट्स की समस्त भूमि को खेती के योग बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा, फॉरेस्ट को खत्म करना पड़ा, जंगलों को काटना पड़ा। ये वो समय था जब किसान इस पर किसानों के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी, जो अत्याचार किए जाते थे, वो किसान चुपचाप सहने के लिए मजबूर था। चूंकि वो खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। वे अपने खेतों पर खेती करने में अधिक समय लगाने लगे और मेहनत का अधिकतर उत्पाद अपने लिए रखने लगे। वे अनपेड वर्क करने से बचने लगे। जो पास्चर लैंड्स थे, जो फॉरेस्ट लैंड्स थे, उनके कारण लार्डों के साथ उनका विवाद बार बार होता रहता था। लार्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि पीजेंट्स इसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली साझा संपत्ति मानते थे। इट मीन डिस्पाइट ऑफ दीज हार्डशिप ऑफ द लॉर्ड वर anxious of the maximize their incomes since it was not possible to increase output from the land. The peasants were forced to bring under the cultivation all the land in the manure state. They spent more time doing this than they were legally bound to do. The peasants did not bow quietly to oppressions. Since they could not protest openly, they restored the passive resistance. They spent more time cultivating their own fields and kept much of the product of that labor for themselves. They also avoid performing the unpaid extra services for their lords. They came into conflict with the lords over pasture and forest land and saw these lands as resource to be used by the whole community. So while the lords treated this as their private property. My dear student, in this paragraph you have seen the condition of the peasants who lived in the manure state. They have some limitations. New agricultural technology. The points we are going to discuss that which type of changes come in agriculture field. I mean to say that खेती में किस तरह के बदलाव आए. By the 11th century, there is a evidence of the several technological changes. Instead of the basic wooden plow, the cultivator began using heavy iron tipped plow and mold boards. This plow could dig much deeper and the mold boards turned the topsoil properly. With this, nutrients from the soil were better utilized. 11th century तक आते आते टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंज आए, बदलाव हुआ. तो several changes which introduced in the technological fields, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुआ 11th century तक आते आते ब्रिटेन में. एंड यू हैव आल्सो इन्फॉर्म दैट द 11th century
द ब्रिटेन कम इन वेरी वार्म फेजेस, गर्म जलवायु में प्रवेश किया। और फिर जो उस समय इंस्टीड ऑफ द बेसिक वुडन प्लाउ, जो लकड़ी के बने हुए हल थे जो खेती के लिए उसमें उपयोग में किए जा रहे थे, जिसमें लोहे की नोक लगी थी और ये मोल्ड करके बने हुए थे, मोल्डेड पॉट्स टर्न द टॉप सॉइल प्रॉपरली। ये जो मूल रूप से लकड़ी से बने हुए हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे का उपयोग होने लगा था। पहले ये लोग लकड़ी से हल जोतते थे, खेत जोतते थे, लकड़ी के बने हल से करते थे। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए उसमें इन्होंने आयरन का यूज़ किया। नीचे के क्षेत्र में नुकीले हिस्सों में इन्होंने लकड़ी की जगह लोहे के फाल लगाए, जिससे गहरी खुदाई हुई, मिट्टी को गहरी तक जोत करके इसकी फर्टिलिटी रेट को बढ़ाया जा सका। इसके फलस्वरूप भूमि में पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा। Instead of this basic wooden plow, cultivators began using heavy iron tools, plow and mold boards. With these nutrients from the soil were better utilized. The method of the harnessing animal to the plow improved. Instead of the neck harness, the shoulder harness came into use. The enabled animal to exert the greater power. Hearts were now better sewed with iron, hard shoe which prevented foot decay. There was increased use of wind and water energy for agriculture. More water power and wind powered mills were set up all over Europe for purpose like milling corn and pressing grain. जो एनिमल्स, जो जानवरों के लिए, पशुओं को जो हल जोतने के जो तरीके थे, जो मेथड्स थे, उसमें भी सुधार हुआ। अब नेक हार्नेस, जो गले के स्थान पर जो हल का जो जुआ बंधा होता था, अब वो कंधे पे बांधा जाने लगा, जिससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। जो पशु थे वो अधिक ताकत से अपनी खेत को जोतने में एनर्जी लगाने लगे। नेक हार्नेस, द शोल्डर हार्नेस केम इनटू यूज। नेक हार्नेस की जगह शोल्डर हार्नेस का यूज किया गया। दिस इनेबल एनिमल टू एक्सर्ट द ग्रेटर पावर। इससे एनिमल ज़्यादा शक्ति निकालने में मदद मिली। हॉर्सेस वर नाउ बेटर सो। घोड़ों के लिए, घोड़ों के खुर पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे उनके खुर सुरक्षित हो गए। खेती के लिए वायु और जल, विंड एंड वाटर जो पावर थी, उसका उपयोग खूब अधिक मात्रा में होने लगा। यूरोप में जो अनाज पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए अधिक विंड पावर और वाटर मिल्स जो थी, मिलिंग कॉर्न ऑफ द प्रेसिंग ग्रैप्स, इसका उपयोग होने लगा। यूरोप में इन चीज़ों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। अंगूरों का रस निकालने के लिए, खेतों को जोतने के लिए, अंगूरों का रस निकालने के लिए, अनाजों की पिसाई के लिए ये व्यवस्था बड़े पैमाने पे डेवलप हुई। और जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले बहुत सारे कारखाने भी स्थापित होने लगे। भूमि के उपयोग के तौर तरीकों में बदलाव आया। सबसे क्रांतिकारी था 2 खेतों वाली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तन। वी हैव डिस्कस कि जो उनके पास ज़मीन थी, एक पार्ट वो जोतते थे और दूसरा पार्ट वो खाली रखते थे। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आए, जो अब बदलाव आए तकनीकी रूप से, उनने ज़मीन को 3 पार्ट में रखा। ये एक बड़ा बदलाव था, तरीके में बदलाव आया। 2 खेतों वाली व्यवस्था की जगह वो 3 खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तित हुई। और इस व्यवस्था में किसान 3 वर्षों में से 2 वर्ष अपने खेतों का उपयोग कर सकता था, बशर्ते वो एक फसल किस ऋतु में लगाए। एक फसल वो शीत ऋतु में लगाए, एक फसल ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, और 1.5 वर्ष पश्चात दूसरी बसंत में होता था। शीत ऋतु में कोई फसल नहीं बोई जाती थी। देयर वर आल्सो चेंज इन लैंड यूज। द मोस्ट रिवोल्यूशनरी वन वाज द स्विच फ्रॉम द 2 फील्ड्स टू 3 फील्ड सिस्टम।
in this peasants could use field 2 years out of 3 if they planted it with one crop in autumn and different crop in spring a year and a half later. As you know that winter was very difficult for them. In winter खेती नहीं होती थी, ठंडी पड़ने के चलते फार्मिंग का काम रुक जाता था. सो दे यूजेस 2 फील्ड सिस्टम की जगह उन्होंने 3 फील्ड सिस्टम उन्होंने इस्तेमाल किया. उन्होंने जो फील्ड सिस्टम में बदलाव लाया, इससे सरप्लस प्रोडक्शन उनका बढ़ा. दैट मेंट दैट फार्मर कुड ब्रेक देयर होल्डिंग इनटू 3 fields. They could plant one with wheat or ray in autumn for human consumption. The second could be used in the spring or ray, peas, beans and lentils for human use, and oats and barley for the horses. ये लोग जो बदलाव लाए, जो आटमन में ये लोग जो फसल बोते थे उसके 1.5 वर्ष के बाद स्प्रिंग और आटमन ये सिस्टम इनका चलता रहा. किसानों ने अपनी जो खेत थी उसको 3 खेतों में बांट करके मानव के कंजम्पशन रेट को बढ़ा दिया. इस फसल चक्र में, इस महीनों में उन्होंने जो शरद ऋतु थे, आटमन थी और स्प्रिंग्स थी, इसमें उन्होंने कुछ फसल, फिक्स फसल को ही बोना शुरू किया. शरद ऋतु में गेहूं और राई बो सकते थे और दूसरे में बसंत ऋतु में जो थी उनका मनुष्यों के उपयोग के लिए मटर, सेम, मसूर और घोड़ों के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे. तीसरा खेत खाली छोड़ देते थे और प्रत्येक वर्ष में तीनों खेतों का उपयोग बदल बदल कर वो कर सकते थे. चेंज दे कुड प्लांट वन विच वेन wheat or ray in autumn for human consumptions. The second could be used in spring to raise peas, beans and linseed, the human use, and oats and barley, the horses. The third field lay follow each year. They rotate the use of among the 3 fields. With this improvement, there was an almost immediate increase in the amount of food produced from each unit of land. Food availability doubled. The greater use of plant like peas and beans meant more vegetable proteins in the diets of the average Europeans and a better sources of fodder for their animals. The cultivators, it meant better opportunities. They could now produce more food from less land. 22. The average size of the peasants' farm shrank from about 100 acres to 20 to 30 acres by the 13th century. Holdings which were smaller could be more efficiently cultivated and reduce the amount of labor need. This gave the peasants time for other activities. इन सुधारों के कारण, इन चेंज के कारण, जो बदलाव हुए उसके कारण भूमि की प्रत्येक पार्ट का यूज प्रोडक्शन में किया जाने लगा. नो डाउट इससे सरप्लस प्रोडक्शन हुए, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई और भोजन की उपलब्धता भी 2 times to 3 times उपलब्ध होने लगी. ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होने के चलते अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड्स प्रोवाइड फॉर ऑल द पीपल्स. So it helpful for the peasants. मटर, सेब जैसे पौधों का अधिक उपयोग एक औसत यूरोपीय आहार के रूप में, प्रोटीन के रूप में और एनिमल्स के रूप में अच्छे चारे के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया गया. फलस्वरूप रिजल्ट्स उसका क्या हुआ? किसानों को बेहतर अवसर मिले, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले और ये अपॉर्चुनिटीज़ अब कम भूमि पर अधिक भोजन उत्पादन करने में उनको मदद की. 13वीं सेंचुरी तक आते आते जो किसान थे उनके खेत का औसत आकार 100 एकर्स की जगह 100 एकड़ से घटकर 20 to 30 एकड़ तक ही रह गई.
और छोटी जोत पर वो अधिक कुशलता के साथ, अधिक एफिशिएंसी के साथ वो काम कर सकते थे, खेती कर सकते थे। कम श्रम की उसमें आवश्यकता पड़ती थी। 100 एकर्स की जगह अगर 20 to 30 एकर्स जोतना हो तो टाइम कम, लेबर कम। इट इज द आई थिंक रिफॉर्म इन द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, ये किसानों के कंडीशंस को भी सुधारा। और इन खाली समय में जो टाइम बचा था उसमें पीजेंट्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, इंजॉय करते थे। सम ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस cost a lot of money. Peasants did not have enough money to set up the water mill and windmill. Therefore, the initiative was taken by the Lord. But peasants were able to take the initiative in many things, such as extending the urban land. They also switched to 3 fields rotation of crop and set up the small forge to smithies in the village, where iron tipped plough and horse shoes were made and repaired cheaply. From the 11th century, the personal bonds that been the basis of feudalism were weakening because economic transactions were becoming more and more money based. Lord found it convenient to ask for rent in cash, not service, and cultivators were selling their crop for money instead of exchanging them for other goods to traders who would then take such goods to be sold in the town. The increasing use of money began to influence price, which turns the increasing use of money began to influence price, which became higher in times of poor harvest. In England, for instance, agricultural price doubled between the 1270s and the 1320s. In this paragraph, author want to inform you about the condition which was changed day by day with the help of technology, with the help of new type of activities which used in the farming land by the peasants, and social system also changed. The surplus production changed the condition of the not only the peasants, but workers and nobles also. They are taking interest. 11th सेंचुरी में जो व्यक्तिगत संबंध है, सामंतवाद का आधार थे, वो कमजोर पड़ने लगे क्योंकि आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगे। अब वो पैसे पे अपने लेन देन को बेस कर लिए। लाडों को, जो लॉर्ड्स थे, उनको जो लगान चाहिए सेवाओं के बजाय वो अब नगद के रूप में लेना चाहते थे, कैश के रूप में लेना चाहते थे, और कैश के रूप में लेना उनके लिए अधिक सुविधाजनक हो गया था। किसानों को अपने फसल, व्यापारियों को मुद्रा के रूप में प्राप्त कर लेते थे, फसल को बेच करके वो कैश मनी के रूप में कलेक्ट करते थे। और हर जगह मनी, आई मीन टू से दैट हियर द ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप्ड, मार्केटिंग सिस्टम डेवलप्ड, एंड द मार्केटिंग सिस्टम, द क्वाइन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एवरीवन वांट इन कैश, नॉट इन गुड्स। लॉर्ड भी अपनी सेवाएं कैश के रूप में चाहता था। अपने जो लगान्स थे, लॉर्ड्स फाउंड इट कन्वीनियंट टू आस्क फॉर रेंट इन कैश, नॉट सर्विस। जो रेंट था वो भी वो कैश के रूप में चाह रहा था। इस तरीके से जो खरीदने और बेचने की प्रथा शुरू हुई, इन वस्तुओं से शहर में वो बेच देते थे और इससे अच्छी कीमत एक तरफ उनको मिल जाती थी किसानों को, और उन्हें लाभ भी मिलता था। और धीरे धीरे से ये बदलाव, ये जो वेल्थ का सर्कुलेशन हुए मार्केट में, दिस इंक्रीज द ह्यूज मनी बिगिन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस विच बिकम हायर इन टाइम्स ऑफ द पुअर हार्वेस्ट। इंग्लैंड में 1270 से 1320 के बीच जो एग्रीकल्चर गुड्स के मूल्य थे, प्राइस थे, वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर गए।
दोगुने बढ़ गए। और ये सब चीज़ें मार्केटिंग सेंटर के डेवलप होने के कारण, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के डेवलप्ड होने के कारण दिखाई देती है। आई थिंक वी हैव डिस्कस हियर ऑल द पॉइंट्स which change the quality, which change the circumstances, which change the condition, which change the relation between the peasants and lords, which also encourage to develop the economic system, marketing system, the trading system in Europe. It is very strange matter when we see that before, when the Europeans not interact with the technology, their production was very low, and the climates that was not changed before 11th century, their conditions also not so good, but after some time gradually we have seen the whole scenario has changed. That's why the social economical relation affected on the very vast level. आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे इसके बाद फोर्थ ऑर्डर पे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।